thought, happiness do not have anything to do with the success. Why? Because success is very volatile in nature. You wanted to get promoted, you will get the promotion, but this success, this happiness will not live longer with you. Till the time you won't hit the next success for the promotion. If you are feeling very hungry and you really wanted to have your favorite food, the favorite food which you ate, you had that favorite food, that happiness is not longer happiness. That is why these are the two different terminologies, and these are two terminologies which do not have direct relationship with each other. Normally, people mistake in collating these two with each other. Why? Because there are much more poor people, much more lesser money, much more lesser all the amenities in the life, but they are much more happier. They do not have even clothes to wear, but you see smile on their face. Yes, no? Yes. At the same time, there are much richer people out there. They have all the comfort of their life, but they are absolutely unhappy and sad. So these are two different terminologies. Now I'm sharing with you one of the very important concept here. Can I see your right hand up? Left hand down? Like this? Okay, we all will do it together. Say it high. High. Low. Low. High, low, high, low. High, low. High, low, high, low. High, low. High, low, high, low. High, low. Okay, stand up. Let's do it together. Okay? Very nice. Yeah? Okay. Do it. High, low, high, low. High, low. You can twist also. Yeah? Okay. High, low, high, low. High, low. High, low, high, low. High, low, high, low. Very good. Sit. Now let me tell you a story. So I was talking to Yuvraj and he was talking about some characters of Ramayana. And one of the very important character of Ramayana was Ravan. Very nice. Any other character? Vibhishan. Fantastic. Any other character? Huh? Hanuman. So this is the story about Hanuman. I don't know whether you heard about the story earlier from me or somewhere else. You know, there was a village. Like there is a village nearby Ahmedabad. Any village? Tell me the name of any village. Kheda. Huh? Kheda. Kheda. So there was a village. Sir, you have come at the very right time. I am about to begin the story. So there was a village named Kheda, and there was a person. The name of a person was Ramdas. तो रामदास उस गांव में रहता था और रामदास का काम क्या था वो अलग अलग गांव में जा करके कहानियां सुनाता था. He used to narrate the stories, and mostly his stories are from the epic, you know, all these books like Ramayana, Mahabharata, and like this. One fine day in the winter time, in the month of November, October, it was a cold days. Yeah, he was sitting and people were sitting there, and he was about to narrate the story. तो रामायण में ऐसे बोलते हैं there are 5 characters, those are जो अमर हैं, परशुराम, अश्वत्थामा, हनुमान, like this. हाँ? So I am saying characters are अमर हैं from anywhere. So Hanuman ji, somebody informed him that there is one person. What was the name of the person? Ramdas. Which village? Kheda. He comes and he is about to deliver something from Ramayana. He became very excited. Who became excited? Hanuman. Someone informed him, so he became very excited. Okay, Ramayana story somebody is telling. He became very excited to listen the story. So amongst all the people sitting in the crowd, वो भी आकर के पीछे बैठ गए. सर्दी का टाइम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. And Ramdas started storytelling. तो रामदास सबके सामने बोलते हैं कि आज हम सुंदरकांड की बात करते हैं, आज हम हनुमान जी की बात करते हैं. तो हनुमान जी को और इंटरेस्ट आने लगा. Isn't it? आपके बारे में अगर कोई ऐसे बैठ के बात करे और आप इनडायरेक्टली सुन रहे हो, आपको अच्छा लगता है ना, क्या बोल रहे मेरे बारे में. तो हनुमान जी became very excited and he was sitting in the crowd. और उन्होंने बोला कि आज हम बात करते हैं कि जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका गए, है ना, तो जामन जी ने उनको उनकी ताकतें, शक्तियां याद दिलाई और वो उड़ के विद्युत सी गति से तेज गए उड़ करके. और जब वहां गए, वहां उन्होंने देखा अशोक वाटिका में सीता माता नीचे बैठी हुई थी, बड़ी दुखी, उदास. She was remembering Lord Rama कि मेरे पति आएंगे, कैसे होंगे, कहाँ होंगे, है ना. और इमोशंस कैसे थे? दुखी से इमोशंस, सैड. तो हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे. उन्होंने हनुमान जी ने राम भगवान की अंगूठी ऊपर से नीचे गिराई और जब अंगूठी गिराई तो सीता माता के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई.
She started smiling. और जब वो सीता माता मुस्कुराने लगी तो वहां जितने सफेद रंग के फूल थे वो खिलने लगे और उनमें से खुशबू आने लगी। ठीक है, तो मोमेंट ही सेड कि वहां जो व्हाइट कलर के फ्लावर्स थे, सफेद रंग के फूल थे, खिलने लगे और उनमें से खुशबू आने लगी, हनुमान जी खड़े हो गए। मिस्टर रामदास स्टॉप। रामदास बोले आप कौन हो? बोले मैं बाद में बताऊंगा कौन हूं, लेकिन ये गलती कर रहे हो तुम। बोले क्या गलती कर रहा हूँ? बोले वो जो फूलों का जो रंग आपने बताया ना सफेद था, वो सफेद नहीं था, वो लाल था। क्या था फूलों का रंग? रामदास बोले मैं 25 सालों से कहानी सुन रहा हूँ और फूलों का रंग सफेद ही है, लाल नहीं हो सकता। तो हनुमान जी बोलते हैं तुमको पता है मैं कौन हूँ? डू यू नो हु एम आई? बोले कौन हो आप? बोले मैं हनुमान हूँ। तो बोले तो क्या फूलों का रंग तो सफेद है, पिछले 25 सालों से फूलों का रंग सफेद ही रहेगा। तो बोले तुम गए थे क्या मालूम का? बोले नहीं। बोले मैं गया था। तो रामदास माना नहीं, बोले तुम भी फूलों का रंग सफेद है। अब देर वाज सम डिस्प्यूट गोइंग ऑन, लोग देखते अरे क्या हो रहा है। तो हनुमान जी ने बोला रामदास, हनुमान जी तो हनुमान जी है ना, हनुमान जी ने अपना एक्चुअल फॉर्म दिखाया, जय जय श्री राम करके बड़े हो गए, उनके अंदर ताकत थी ना। हनुमान जी को 8 वरदान मिले हुए हैं, वो अणु से छोटे हो सकते हैं, वो बहुत बड़े हो सकते हैं, मतलब उनके अंदर इतनी शक्तियां, वो पवन से तेज चल सकते हैं, ऐसी 8 शक्तियां हैं। उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। तो अणिमा गरिमा ऐसे करके 8 है। तो उसमें क्या हुआ, हनुमान जी ने बोला ठीक है रामदास बैठो मेरे कंधे पे। रामदास बोले कहाँ लेकर के? बोले कुछ नहीं, बैठो तुम चलो। वो लेके गए कंधे पे उठ के हनुमान जी। बोले कहाँ लेके जा रहे? बोले चलो मेरे प्रभु राम के पास। राम भगवान मेडिटेशन में थे। राम भगवान ने बोला हनुमान क्या बात है, बड़े टेंशन में दिख रहे हो, बीपी बढ़ा हुआ तुम्हारा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो बोले प्रभु वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मेरे साथ में ये रामदास हैं, ये कौन से गांव में, और ये रामायण की कहानियां सुनाते हैं और ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं, लेकिन ये एक मिस्टेक कर रहे हैं। बोले क्या मिस्टेक कर रहे हैं? बोले ये बोल रहे हैं कि फूलों का रंग, लेकिन फूलों का रंग तो लाल था, नहीं गया था वहां पर। तो राम भगवान बोलते हैं कि देखो हनुमान, अगर ये बोल रहे हैं फूलों का रंग सफेद था तो मान लो यार, क्या बुजुर्ग आदमी से बहस करते हो? हाँ? तो क्या हुआ, तो वो इस स्टोरी में थे, तो बहस मत कर दो। हनुमान जी को बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। हनुमान जी बोले यार आप मेरे भगवान हो या इनके? मैं आपका सबसे बड़ा डिवोटी परम भक्त और आप इनको फेवर कर रहे हो। बोले दिस इज नॉट ओके। और हनुमान जी उदास। हनुमान जी बोले आप क्या करूं? तो हनुमान जी ने बोला कोई बात नहीं, दूसरे कंधे पे बैठो। लेके गए सीता माता के पास। सीता माता के बैठी हुई थी। सीता माता बोला हनुमान क्या बात है पुत्र, बड़े टेंशन में हो? बोले हाँ माता, ये जो व्यक्ति है इसका नाम क्या है? कौन से गांव में? खेड़ा में। बोले ये रामायण की कहानी सुना। बोले तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब आप पशु वाटिका में थी, मैं जब आया था, मैंने ऊपर से वो गिराई थी, उस समय पर फूलों का रंग लाल था, ये बोल रहा है कि सफेद था। माँ आप बताओ, आप तो वहां पर थी, आपने देखा था फूलों का रंग लाल था, सफेद नहीं था। सीता माता बोलती है सुनना, यहाँ पर जिंदगी की सीख है। यहाँ पर लर्न अबाउट द लाइफ फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी। सीता माता सेड हनुमान, बिफोर आई आंसर यू कि कलर क्या था फूलों का, एक बात बताओ, जब आप वहां पर आए थे तो आपके इमोशंस कैसे थे? तो उन्होंने बोला मेरे इमोशंस गुस्से वाले थे, मैं रावण से बदला लेने के लिए आया था, मेरा मन कर रहा था कि उसकी पूरी लंका जला दूं, उसको खत्म कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। सीता माता बोलती हैं जब आप वहां पर आए थे, आप इतने गुस्से में थे, इतने बदले की आपके अंदर वो जोश था कि आपकी आंखों में खून उतर आया था, और सफेद रंग के फूल भी आपको लाल दिखाई दे रहे थे, फूलों का रंग तो सफेद ही था। What does it mean? It means whenever you are at high of the emotion, you are very angry, extremely angry, that is high. Understood? Understood? So that's the time, and where you are so sad, you are absolutely disappointed, frustrated, sad, बहुत